Okay, this is the fourth lecture. तो हमने कैटेगरी उठाई थी लास्ट लेक्चर में। कैटेगरी की डेफिनेशन हमने की थी। उसमें कोई कन्फ्यूजन रहा आपको? कोई क्वेश्चन था उसके रिलेटेड अबाउट कैटेगरी? सर वो एग्जांपल जहाँ पे वो सेट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस नहीं इन्वॉल्व है एज होम. ओके, so if you take any semi-group, say, or you can take monoid, not semi-group. Let S be a monoid. Monoid means a semi-group with identity. Okay, a semi-group with identity. आइडेंटिटी हम यूजुअली वन से डिनोट करते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे सेमी ग्रुप को डिटेल में. सो लेट्स टेक दिस मोनाइट. ओके, नॉट टेक any fixed element, not necessary the element of S, it is anything. Let x be some fixed element. Okay, so let's see this category which is consisting of the single object O. So O is the singleton set X. तो X कुछ भी हो सकता है. X is anything. So X is not a set. जैसे आपने कैटेगरी में देखा कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो यूजुअली सेट्स होते हैं. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है दैट्स योर X सिंगलटन. जो सेट है ना X, इसका जो एलिमेंट है O का X, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. Now you try to define morphisms between this object X to X. X to X. Morphism हम क्या लेंगे? Because here X is the object. Morphism हम लेंगे elements of S. हम ट्रीट करेंगे दे आर ऑल द मॉर्फिज्म्स between the object X and these two objects. It's a single object X. ठीक है. इनको बोले नोट करने के लिए शो आ रहा है. तो मॉर्फिज्म्स हम लेंगे जो भी एलिमेंट है ना S का, वो हम मॉर्फिज्म लेंगे. हम मैं इसको एक पर्टिकुलर केस लूँगा यहाँ पर S को, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए. Let's take this as the set of natural numbers and take the operation as multiplication. Okay, because under multiplication this S is a monoid. अब मेरे पास अब ऑब्जेक्ट X है. X और X के मुझे अब मॉर्फिज्म चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. आई हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट X हियर. तो जो भी एलिमेंट है इसका आई विल ट्रीट दिस एज मॉर्फिज्म. एवरी एलिमेंट. 1 भी मॉर्फिज्म है. 1 is a morphism from X to X. Okay, 2 is a morphism from X to X, and so on. They are all. N in general, N is a morphism from X to X. Now they are not functions actually. They are the elements of monoid S. अब यहाँ पर कंपोजिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन द कंपोजिशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू टेक टू मॉर्फिज्म्स, लेट्स टेक द मॉर्फिज्म 1 between the object X and X, and let's take the another morphism 2 between the object X and X. And what's the composition? Composition is just the product of these two, that's equal to 2, which is the morphism between the object, because any element is treated as morphism. Now let's take another. Let's take the morphism, say let's take 5. It's an element of monoid. Okay, and let's take another morphism, say 6, between the object X and X. Then let's
take the composition as the product, okay, product of these two elements. 5 into 6, 5 into 6, it's equal to 30. 30 is again an element of S, so it is again a morphism between this X and X. So this composition is well defined actually. Composition is well defined. Now you want to define the identity morphism. You can define morphism between X and X because one is an element of S, so one is also the morphism. And if you compose this one with any morphism, so let's take any morphism, say N, between the object X and X, and let's take the morphism 1 between the object X and X, and then their composition. What's the composition? Composition is the N into 1, which is equal to N, which is again the morphism between X and X. So the composition of these two morphisms, N and 1, is N, and composition of the morphism 1 and N is again N. So this this identity identity of a monoid acts as this identity in the category. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्लास है, अब ये कैटेगरी क्या है अगर आप इसको देखना चाहोगी, दिस कैटेगरी इज अ सी. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, सिंगलटन एक्स एनीथिंग. देन वी हैव अ होम. होम इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मोनोid S, and then we have the identity that I already discussed. Its identity is a singleton set here. It's just the element 1 of the semigroup S, and then we have the composition. That's actually the product. That's actually the product of the elements of the monoid S. So this is your category. इसकी वो सारी प्रॉपर्टीज है जो कैटेगरी की होनी चाहिए. ये कैटेगरी है. ये क्लियर हो गया आपको? यस सर. ओके. नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा ये कैटेगरी कैसे है? सो आप मोनोइड की जगह पर ग्रुप्स भी ले सकते हो. इफ यू टेक S इक्वल टू द ग्रुप G, तो फिर आप कोई भी फिक्स कीजिए, कोई भी, यू कैन फिक्स एनीथिंग, से X. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट सेट X. इसमें एक ही एलिमेंट है. अब यहाँ पर भी हम मॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे एज एलिमेंट्स ऑफ G. G बिलोंग्स टू G. एनी एलिमेंट ऑफ G, एनी एलिमेंट G ऑफ G इज ए मॉर्फिज्म. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि X इनवर्स जो है, G इनवर्स जो है ना, वो भी मॉर्फिज्म है, बिकॉज G इनवर्स इज इन G. G भी मॉर्फिज्म, क्योंकि G का कोई भी एलिमेंट आप ट्रीट कर सकते हो मॉर्फिज्म. G का कोई भी एलिमेंट ट्रीट नहीं कर, मतलब ये है मॉर्फिज्म. इट्स अ मॉर्फिज्म हियर इन दिस कैटेगरी. अब इनका कंपोजिशन आप देखोगे ना, इन दो का, इट्स द आइडेंटिटी थी. G इनवर्स, दैट्स इक्वल टू आइडेंटिटी, or you can say it's equal to 1. 1 is the identity between the object X and X. So the composition G inverse is equal to 1, and G inverse G is also equal to 1. और जिस कैटेगरी में ऐसा होगा, अगर आपके पास कोई मॉर्फिज्म G होगी, इसमें कोई मॉर्फिज्म और एग्जिस्ट होगी, से H, इनका कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी होगी, उस केस में हम कहते हैं, इसका अगर लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, राइट इनवर्स भी है, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स है. तो यहाँ पर ये जो G इनवर्स है, इट इज बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट इनवर्स. तो अगर ऐसा होगा, मॉर्फिज्म आपके पास G होगी, कोई किसी भी कैटेगरी में कोई मॉर्फिज्म आपके पास होगी, उसका लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा और राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, उस मॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं. तो जब आप ये कैटेगरी लोगी, इस टाइप की कैटेगरी, इसमें G का हर कोई एलिमेंट जो है ना, वो मॉर्फिज्म है, और वो सिर्फ मॉर्फिज्म नहीं है, वो आइसोमॉर्फिज्म भी है. और मोनोइड की केस में ऐसा ट्रू नहीं है. इट्स नॉट ट्रू इन केस ऑफ मोनोइड्स. तो मुझे लग रहा है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. ये जो मॉर्फिज्म्स है, ये ज़रूरी नहीं कि ये फंक्शंस होगी, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट्स होगी. आप इस x मे बी एनीथिंग, x इज एनीथिंग है, कोई भी आप कुछ भी चूज कर सकते हो. x यू कैन चूज यूर सेल्फ है. जैसे हम यहाँ पर इरफान लेंगे, CR आपका है, इसी को हम पकड़ लेंगे यहाँ पर. मैं इसको ये भी ले सकता हूँ, इरफान टू इरफान, लाइक दैट. इट्स एनीथिंग है. इट इज जो भी चीज़ आप लोगे ना x की जगह पर, तो ये यहाँ पर इट कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट
in this category. सर होम में हमेशा होता है ना आइडेंटिटी मॉर्फिज्म, तो हम अलग से क्यों निकालते हैं इसको? होम में हमेशा कहाँ नहीं, जब आप कैटेगरी लोगे ना, कैटेगरी में आइडेंटिटी होनी चाहिए कैटेगरी सर में। होम में होगी ना मॉर्फिज्म एज एन आइडेंटिटी भी, हम अलग कैसे होगी और आइडेंटिटी? confusion होम में कैसे होगी आइडेंटिटी, ये मुझे बताइए। सर होम में होते हैं ना मॉर्फिज्म, हाँ होती है मॉर्फिज्म। आइडेंटिटी सेपरेट क्यों करते हैं हम सर? कोई कंफ्यूजन यहाँ। जरूरी नहीं कि होम में आइडेंटिटी हो, कहाँ होती है आइडेंटिटी होम में? ये देखिए, जो चीज़ें यहाँ तक जो आपने ली है ना, जैसे आपने ग्रुप्स की कैटेगरी पढ़ी, वहाँ पर आइडेंटिटी है होम में, है ना। आप वेक्टर स्पेस की कैटेगरी लो, वहाँ पर आइडेंटिटी है। और इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि होम में, मतलब आप ऐसी चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उस टाइम वो मेरे जहन में नहीं है। आपके पास ये दो चीज़ें तो होगी, ऑब्जेक्ट एंड होम, मगर आइडेंटिटी नहीं होगी, मतलब वो कैटेगरी नहीं बनाएगी। ओके जैसे जैसे आपके पास आइडेंटिटी मैप है, ओके। अगर आप ग्रुप्स की कैटेगरी में लोगे, आप यू कैन डिफाइन आइडेंटिटी बिटवीन एनी टू ग्रुप्स, बिटवीन अ ग्रुप जी एंड जी। आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो, आई ऑफ जी इक्वल टू जी। अब क्या ये होम में है, पहले ये वेरीफाई करना है। और ये है होम में बिकॉज इट्स अ मॉर्फिज्म, इट्स अ ग्रुप होम मॉर्फिज्म। आपको ये समझ आ रहा है? ये सर ये In case क्योंकि of ये group- है ग्रुप होम, ये होना चाहिए ना पहले। ये सर आप होम में ले रहे हो मॉर्फिज्म बिटवीन द ग्रुप्स, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली ये है, क्योंकि यहाँ पर है आइडेंटिटी मैप जो आपके पास है, ये है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब जैसे एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एंटी होमोमॉर्फिज्म। एंटी होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? वो ऐसी वो होती है मैप बिटवीन द टू स्ट्रक्चर सेट्स satisfying this property, f of a b is equal to a f b f, not a b f, इसका रिवर्स, इसको कहते हैं एंटी होमोमॉर्फिज्म, बी एफ ए एफ, इसका नाम है एंटी होमोमॉर्फिज्म। और जो अगर हम लेंगे ना प्रॉपर एंटी होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ये बी एफ ए एफ बी एफ के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप जो यहाँ पर है, इट्स इक्वल टू आई ए बी, ये है ये, इट्स नॉट इक्वल टू बी आई एंड ए आई। चलो ये तो एंटी होम की बात है। मतलब एंटी होम में मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर आइडेंटिटी बिलोंग ना करी। और जब आप होम लोग, जब आप ऐसी कैटेगरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जैसे जो अभी हमने कैटेगरी बनाई मोनाइड की, मैं मोनाइड की जगह पर अगर सेमी ग्रुप लोगा ना, इफ आई विल टेक द सेमी ग्रुप इंस्टेड ऑफ मोनाइड, तो वहाँ पर वो कैटेगरी नहीं है। हाँ, अगर आप कैटेगरी ऑफ मोनाइड्स लोगे ना, वहाँ पर तो वो कैटेगरी है। बट अगर मैं इस टाइप की कैटेगरी बनाऊंगा, अगर एस में मोनाइड लूँगा, एस इज अ मोनाइड, ओके, एस इज नॉट अ एस इज सेमी ग्रुप, इफ आई विल चूज दिस एज सेमी ग्रुप, और इसमें आइडेंटिटी नहीं है। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल, लेट्स टेक द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ओके, इट्स अ सेमी ग्रुप विदाउट आइडेंटिटी। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए x, अब अगर मैं मॉर्फिज्म डिफाइन करूंगा x टैक्स एज एलिमेंट्स ऑफ दिस 2 4 6, ये सारे मैं लूंगा मॉर्फिज्म। ये कैटेगरी अब नहीं है, इट्स नॉट अ कैटेगरी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी है ही नहीं इस होम में। आपको बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर, तो इसमें आपको लग रहा है कि इसमें आइडेंटिटी है? यस हाँ, नोट सर, इसमें आइडेंटिटी हो, इट्स नॉट अ कैटेगरी, इट्स नॉट अ कैटेगरी। इसमें ये दो प्रॉपर्टीज है आपके पास, है ना। आपके पास ऑब्जेक्ट क्लास भी है, दैट इज सिंगलटन एक्स। आपके पास होम भी है, बट वी डोंट हैव आइडेंटिटी। और आपके पास कंपोजिशन भी है, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो दिस नॉट अ कैटेगरी, इट्स नॉट अ कैटेगरी, इट इज नॉट अ कैटेगरी, इट्स नॉट अ कैटेगरी। तो इसको आप देख लेना एक बार फिर से, क्योंकि ये मेरे जहन में आ गया ये एग्जांपल।
फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना. तो होम तो आपके पास है बट स्टिल नॉट अ कैटेगरी बिकॉज वी डोंट हैव आइडेंटिटी हियर. और ऐसी कैटेगरीज को हम कहते हैं, आई थिंक इट्स दोज कैटेगरीज आर कॉल्ड स्मॉल कैटेगरीज, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा ना इस टाइप का. जैसे ग्रुप की कैटेगरी जो है ना वो स्मॉल कैटेगरी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे ग्रुप्स है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिर्फ आपका एक एलिमेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट. ओके, मैं आगे जाऊं फिर. Yes, sir. So now let's come to our main topic, that's semi group. तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने देखी है, वाई वी स्टडी सेमी ग्रुप्स. और इस कोर्स में आप इसका जो 4th चैप्टर है वहाँ पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आ जाएगी, जो मैंने इनिशियली फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट. तो इसकी इम्पोर्टेंस देखने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, है ना. इसमें कुछ नोशंस हम डिफाइन करेंगे, और वो नोशन जब आप ग्रुप्स पर लोगे ना वहाँ पर वो ट्रिवल होते हैं वो नोशंस, और यहाँ पर वहाँ पर वो नॉन ट्रिवल है. तो सबसे पहले वो चीज़ें हम देखेंगे, फिर फाइनली जो 4th चैप्टर होगा वहाँ पर इंशाल्लाह आप इसकी इम्पोर्टेंस, हाउ ब्यूटीफुल दिस सेमी ग्रुप इज. इट्स मतलब ये इट्स नाइसर दैन द ग्रुप. तो ग्रुप इज नाइस इन itself because it has inverse, it has identity, but anything which is without inverse, without identity has some properties nicer than the group, because those properties are actually trivial in groups. So that we'll see in our course. Okay, so let's first define a semi group. So for this we first define group, right? Let's take S, which is non-empty set, and mu from S cross S to S. So this mu is a binary operation. It's a, because it's a function from S cross S to S. Binary operation. आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, दूसरा आपके पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन म्यू. देन दिस पेयर, then the pair S mu is called a groupoid. It's called a groupoid. This pair is called a groupoid. If this mu is associative, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी, associative. That is, for all x, y, z in S, we have the image of x, y under mu, then image of that element with z. Okay, it is of mu. It's equal to x, y, z mu. This binary operation associative means this thing, x, y mu is equal x, y mu, then z of mu is equal to x, y, z mu of mu. Then the pair S mu is called a semi group. अगर ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होगी, एसोसिएटिव का मतलब ये है, इसका नाम मैं 1 रख दूंगा. So then S mu is called a semi. Okay, so in future we shall use the notation multiplication instead of mu. In this course we shall use the notation
notation multiplication instead of this mu, we shall use the notation multiplication for binary operation, okay, instead of mu. So in this notation, in this matlab multiplication notation, in this notation our this one, the associative property reduces to, now you can see अब आपको थोड़ा इजी लगेगा ये नोटेशन जो है ना. अब एक्स वाई ऑफ म्यू मीन्स एक्स वाई हियर because we use the notation multiplication instead of mu. It's xy first, then z, product multiplication notation. So this first reduces to xy z is equal to x z. So you are familiar with this notation. आवाज नहीं आ रही है. You are familiar with this notation. अगर हम notation multiplication use करेंगे instead of mu, then in this notation this associative property reduces to this x y z is equal to x y z. So इस कोरस में हम इसी नोटेशन का यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नोटेशन, नॉट दिस नोटेशन म्यू. अब आपके पास कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स की डेफिनेशन है, दैट्स वेरी सिंपल, जिसमें मल्टीप्लिकेशन आपका जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दैट सेमी ग्रुप इज कॉल्ड ए कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप. और फ्यूचर में हम ये जो है ना एस डॉट, अब क्योंकि अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन नोटेशन है तो वहाँ पर जो सेमी ग्रुप है वो आपको एस डॉट से डिनोट करना पड़ेगा. also we shall write if S is semi group, also if S with dot is a semi group, because now we have a multiplication notation as a semi group, then we shall simply write, yes, semi ring. 1 minute, कहाँ पर मैंने semi ring दिया? ओ यहाँ पर. It's a semi group, okay, it's semi group. Okay, so also if this is a semi group, then we simply write S, it as S. हम सिर्फ S लिखेंगे, हम हाँ जहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पर हम ऑपरेशन को मेंशन करेंगे. अगर पर्टिकुलर केस कोई होगा, कोई एग्जांपल होगी, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें लिखना होगा, वो सेमी ग्रुप है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को मेंशन करेगी ऑपरेशन क्या है. तो इन जनरल कॉन्टेक्स्ट तो वहाँ पर आप सिंपली एस लिखोगे, एस एस सेमी ग्रुप. नो a semi group S, a semi group S is said to be commutative, if it is very simple, xy is equal to yx, if it satisfies the identity, or if xy is equal to yx for all xy belongs to S. अब अगर मैं लिखूंगा ना ये if it satisfies the identity xy equal to yx, वहाँ पर मुझे for all लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ये है कि for that equation should satisfy for each elements, for each pair of elements. ठीक है, या तो मैं लिखूंगा if it satisfies the identity, क्योंकि इसका मकसद है मेरा आगे ना आइडेंटिटी यूज़ करने का, या हम ज़्यादातर फिर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, नॉट दिस फॉर ऑल xy, क्योंकि जो आगे हमें क्लास डिफाइन करना है वैरायटी, लाइक वैरायटी ऑफ सेमी ग्रुप्स, तो वहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ यूजुअली करते हैं, नॉट दिस एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई. और इसको यूजुअली हम कहते हैं, अगर ना आपके पास सेमी ग्रुप सारी कम्यूटेटिव होगी, उसको हम यूजुअली कहते हैं वैरायटी ऑफ कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप सेटिस्फाइंग दिस आइडेंटिटी. तो फिलहाल हम उस पर नहीं आ जाएंगे.
तो यहाँ पर बस मैंने ये कह दिया है कि अगर मैं लिखूँगा इफ़ इट सेटिस्फाइज द आइडेंटिटी, मुझे इस चीज़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। हाँ, अगर मैं आइडेंटिटी ना लिखूँ, अगर मैं लिखूँगा डायरेक्ट ये इक्वेशन, तो वहाँ पर मुझे ये लिखना ज़रूरी है, दिस इक्वेशन शुड सेटिस्फाई फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इन एस। तो ये है कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। नाउ वी डिफाइन आइडेंटिटी एलिमेंट। An element that we will denote by 1, okay, is said to be an identity of S. As throughout this lecture series or throughout this course, S will denote the semigroup. Said to be an identity of S if 1x is equal to x is equal to x1. So this is a semigroup with identity. So that's an exercise. जैसे groups की identity unique होती है, semigroup की identity is unique. The identity of a semigroup is always unique. Identity. Identity of a semigroup is unique. So proof is simple. Let 1 and 1 dash be identities of S. Then you can easily verify this 1 into 1 dash. If I treat this 1 as identity, it's equal to 1 dash. But if I treat 1 dash as identity, then this is equal to 1. It's simple, huh? You can easily verify it. Identity is unique. Identity of a semigroup is unique. If semigroup S does not possess an identity, does not possess the identity, then we can always adjoin an extra element. 1 dash. A semigroup S with identity 1 is called a monad. First we define monad. A semigroup S with identity 1 is called a monad. Semigroup with identity is called a monad. That's the definition of monad. So if the semigroup S does not possess identity, we can always adjoin an element 1 to S to make it monad. Okay, if the semigroup S does not possess the identity, then we can adjoin 1 to S and define. तो एडजॉइन हम करेंगे, फिर इसके लिए ऑपरेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया है और हम 1 के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे एक्स के एलिमेंट्स को, लाइक दिस, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी बनानी है 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, और 1 का ऑपरेशन 1 के साथ किस तरह डिफाइन करेंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. ओके, तो अब ये जो नया सेट बन गया ना आपके पास S यूनियन 1, सो देन S यूनियन 1 जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने एडजॉइन किया इसके साथ, दिस इज ए मोनाइड, अब इसमें आइडेंटिटी है, इट्स ए मोनाइड, इट इज ए मोनाइड. And we shall use the following notation. We shall
use the following notation. What's that? We use the notation S1. It's equal to